you have learned from here. So I am very grateful and thankful all of the students that you gave me a lot of respects. I am very grateful to the supportives who also managed this class in a very well manner. So I am very emotional going to be here because of each and every year I have to see this day, and whenever I teach a student, then I feel that this student will leave me one day. So that pain is very tough for me. I cannot bear that pain, but anyway we have to bear, we teachers have to bear, because of if I will not bear, then who will bear? So you all have to be a good man, great man and honest man. You all have the capacities, and this examination, annual examination of intermediate 2026 is not only an examination, it is your midpoint of entering the life, because of if you do better here, then no one will compete you. It is your motivation of ahead path. This will only do this intermediate examination. So please try to do better in this examination, otherwise your guardian will not support you, your own mind will not support you, because of you will feel guilt yourself. You will say that I have got this much mark, I am inferior. No, you are not inferior, you are a warrior. Each and every moment you are fighting with a circumstance. Try to signal that circumstance in every aspects of the lives. So I will not take much time. After some times I will also put my matters, put my words for all of you. So in this on this great occasion, I have called your big brother or your senior. You all know, as you all know, that his name is Shivam Kumar. Now he is a CRPF of Indian government. So this is very ridiculous and very fantastic moment also for all of us. So please give a big hand for this boy. Clap. I never knew that he will do like this a big work in upcoming 5 years. Before 5 years, I think 2000 which year? 21. The same position whatever you have the positions of now you are sitting, he was also sitting. I didn't expect that he will go this. So really he is an energetic person. If you will sit this person 1 hour, 20 minutes, 25 minutes, you will feel the energy, you will feel the motivation. So for this I have called this student to give his own energy for your upcoming examination. For examination up to 6 days, his words will be with you, and you will, I think, obey and respect his words. So please welcome Shivam Kumar with a big hand and clapping. Shivam. थैंक यू सभी को। जैसे भैया बता रहे थे कि 2021 में मैं भी 12th का एग्ज़ाम दिया। मेरा एक साल नहीं, लगभग 6-7 महीना भैया के साथ अच्छा समय रहा। ये जो रूम है मंदिर की तरह था मेरे लिए। मैं अपना दिनचर्या का लगभग 8-9 घंटे में यहाँ बिताता था, और ज़्यादातर हम और भैया थे जो ज़्यादातर अकेले में ज़्यादा बातें होती थी रात में। लगभग 6-7 बजे के बाद हम लोग 10 बजे तक लगभग उसमें हम लोग पढ़ाई भी करते थे, कुछ मुद्दों पर बात भी होता था, सामाजिक मुद्दे, कुछ मेंटल लेवल ऊपर करने के लिए बातें स्पिरिचुअल पर होता था।
तो वो चीज़ें हमारे लिए गोल्डन टाइम था। शुरुआत में थोड़ा मैं कम समझ पाया उस चीज़ को, क्योंकि मैं उस समय एक स्टूडेंट फेज़ में था अपने लाइफ का। तो उस समय मैं ज़्यादा उस चीज़ को डीपली समझ नहीं पाया। जब मैं स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा, जब मेरा जॉब हुआ और जब मैं समाज को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू किया, उस समय मेरा जैसे मैं जब स्टूडेंट था, जैसे आप ही लोग अभी हो, तो अपने आप भी आप लाइफ में स्ट्रगल करे हो पढ़ाई को लेकर और जॉब को लेकर। जब आपके पास जॉब होगी तो कुछ और नज़र से आप समाज को देखोगे, फिर आपको समाज कुछ और ढंग से दिखेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ आप लोग का जो एग्ज़ाम है, कि आप एग्ज़ाम को किस तरह टैकल करो। आप लोग तो पहले 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम में बैठ चुके हो, बिल्कुल डरना तो बिल्कुल नहीं है। पर मैं एक बात बोलूँगा कि एग्ज़ाम आप ईमानदारी से देना, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो बिहार में होते हैं कि बोलते हैं कि कैसे भी नंबर ले आओ ज़्यादा, ठीक है, तो वो चीज़ें मत करना। मैं भी नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं फ्री माइंड से जाता था, मेरे पैकेट में सिर्फ पेन और एडमिट कार्ड रहता था, ठीक है। ना मैं कुछ उम्मीद करता था कि कोई क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, और ना मैं ये उम्मीद करता कोई मुझे बताएगा चाहे मैं कुछ ले जाऊँ। अगर वो भले ही तुम सेकेंड आ जाओ, वो मैटर नहीं करता है, पर जो नंबर आएगा ना, वो अंदर से सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं ये अपने काबिलियत पे लाया। वो चीज़ें आपको ज़्यादा मोटिवेट करेगी। अगर आपका नंबर, बहुत सा स्टूडेंट था मेरे क्लास में, एक रिजवान था मेरा दोस्त, वो भी अच्छा पढ़ने में था, तो मेरे से ज़्यादा नंबर उसका था 12th में। तो मेरे से नंबर ज़्यादा था, पर अगर देखा जाए कि विदिन 1 ईयर में, तो मैं उससे ज़्यादा मैं अपने आप को मेंटली थोड़ा ज़्यादा बना पाया, क्योंकि मेरे अंदर वो ऑनेस्टी था कि मैं वो जो नंबर मेरे अंदर आया, वो भी लाया होगा ऑनेस्टली, वो भी किया होगा अपना काम, पर मेरे अंदर वो जो भूख था ना, नंबर भले ही कम आया, मेरे अंदर एक भूख था कि रिजवान से मैं अभी भी थोड़ा कम जानता हूँ। वो भूख मेरे अंदर आ गया कि अरे थोड़ा सा लगता है मैं कम मेहनत किया, तो और भूखें बढ़ गई। वो आपके बैचमेट्स में अगर आपका नंबर कम आया ना, तो आपके अंदर वो भूख बढ़ेगी, वो काम करने का जो होता है ना बेचैनी, वो बढ़ेगा कि इस बार तो मैं पीछे रह गया, नेक्स्ट टाइम मैं आगे निकलूँगा। और वही भूख बेचैनी था कि मैं अपने लाइफ में 12th के 1 साल बाद ही मैं 3 एग्ज़ाम क्रैक किया। पहला एग्ज़ाम मेरा था एयरफोर्स का। अगर अग्निवीर नहीं होता तो शायद मैं एयरफोर्स में ही रह जाता, ठीक है। तो मैं अग्निवीर उसमें फॉर्म ही आया था अग्निवीर करके। मेरा तैयारी इस लेवल का था कि अगर कोई भी ऐसा अग्निवीर नहीं भी रहता तो मैं क्रैक करता, क्योंकि उसमें कंपटीशन 8 लाख लगभग फॉर्म गिरा था, 2500 सीट के फाइट हुआ था ऑल इंडिया में। मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था 456, मेरा ऑल इंडिया रैंक था उस समय। तो अच्छा बढ़िया फाइट हुआ था, भैया साथ में थे हर एक स्टेप में। जो मेरा फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ, फिर फेज़ 3 में हुआ, सब में साथ थे। उसमें अच्छा कंपटीशन था, तो फिर मैं उसमें गया, फिर उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस किया। फिर जैसे कि समाज, घर वाले जज करने लगे कि 4 साल का जॉब है। अगर आपको कोई अगर संकुचित देख रहा है तो फिर आपको अंदर से बुरा लगेगा कि मैं इतना मेहनत किया, इतना कंपटीशन करके गया, फिर भी लोग बोलें कि नौकरी 4 साल का ही है। तो उस समय अंदर एक मतलब कि जुनून था कि अपने आप को प्रूफ करना है। तो मैं, घर वाले मना किए हैं कि मत छोड़ो नौकरी, तो मैं सोचा नहीं, अगर मैं इसमें रह गया 4 साल, मेरा गोल्डन टाइम भी जाएगा और ना मैं प्रूफ कर पाऊँगा कि ये मतलब होता ना कि लक से हो गया नौकरी। तो वही बातें थी कि फिर मैं उस चीज़ को रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। घर वाले को मैं बोला कि मुझे करने दीजिए, अभी टाइम मेरे पास है, मैं कर लूँगा। फिर मैं आया, फिर मैं CRPF का एग्ज़ाम दिया, SSC GD का। उसमें मेरा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। मात्र मतलब 10 दिन में सेट प्रैक्टिस किया। मैं 27 दिसंबर 2022 को CRPF ज्वाइन किया, ठीक, एयरफोर्स ज्वाइन किया था, और मैं 20 जनवरी को मैं घर आ गया था, ठीक है, रिज़ाइन करके। और 2 फरवरी 2023 को मेरा एग्ज़ाम था SSC GD का। 10 दिन मेरे पास टाइम था, मैं सेट प्रैक्टिस करके मैं एग्ज़ाम दे दिया। तो उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 126 समथिंग मेरा मार्क बना था उसमें 160 में। तो उसमें मेरा चॉइस ही डाल दिया था पहले मैं CRPF, इसलिए हमको CRPF मिल गई, ठीक है। तो वो भी अच्छा रहा, क्योंकि अगर अभी मैं करेंटली मैं CRPF में हूँ, तो बाकी फोर्सों से मैं अच्छा एक्सपीरियंस करता हूँ उसमें। CRPF में बाकी फोर्सों से बहुत ज़्यादा अच्छा है,
आप मतलब डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इंडिया को, मेंटली फिज़िकली।